پاکستان پہلگام حملے میں ملوث نہیں تھا، بھارت نے عالمی قانون توڑا، جواب دے۔ اقوام متحدہ نے بھارت سے باضابطہ وضاحت طلب کر لی۔ اقوام متحدہ کے ماہرین کے بھارت کے یک طرفہ اقدامات پر سخت اعتراضات۔ پہلگام حملے کی مذمت کی، ذمہ داروں کو قانون کے مطابق سزا دینے پر زور دیا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ پاکستان نے حملے میں ملوث ہونے کی تردید کی اور غیر جانبدار اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ 7 مئی 2025 کو بھارت نے آپریشن سندور کے تحت پاکستان کی حدود میں طاقت کا استعمال کیا۔ یہ طرز عمل اقوام متحدہ چارٹر کے خلاف ہے۔ بھارت نے سیکیورٹی کونسل کو پیشگی اطلاع نہیں دی۔ پیشگی اطلاع نہ دینا مطلوبہ طریقہ کار کی خلاف ورزی ہے۔ پانی کو سیاسی یا معاشی دباؤ کا آلہ نہیں بنایا جا سکتا۔ اقوام متحدہ کے اسپیشل رپورٹرز کی سنتاس معاہدے پر پاکستان کے موقف کی بھی تصدیق۔ بھارت کی ہیلڈن ایبنز کی بھارتی اصطلاح پر خصوصی ماہرین کی شدید تشویش۔ رپورٹ کے مطابق پانی کے بہاؤ میں رکاوٹ کروڑوں پاکستانیوں کے بنیادی حقوق متاثر کر سکتی ہے۔ خوراک، روزگار، صحت، ماحول اور ترقی کے حقوق بھی متاثر ہوں گے۔ کوئی فریق یک طرفہ طور پر معاہدہ معطل نہیں کر سکتا۔ معاہدے کے قانونی طریقہ کار کو بائی پاس کرنا غیر قانونی ہے۔ بھارت کی میٹیریل بریچ اور سرحد پار دہشت گردی کے الزامات غیر مصدقہ ہیں۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق رپورٹ نے بھارت کے غیر ذمہ دارانہ ریاستی رویے کو بے نقاب کر دیا۔ صدر آصف علی زرداری کا خیر مقدم، کہتے ہیں سنتاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی، عسکری کارروائیاں، پانی کے بہاؤ میں مداخلت اور اقلیتوں پر ظلم و تشدد عالمی امن اور خطے کے استحکام کے لیے خطرہ ہے۔ بھارتی مداخلت، قتل و غارت سے متعلق رپورٹس خطرناک رجحان کی نشاندہی ہے۔ India has released this water without any prior notification or any data or information sharing with Pakistan as required under the treaty. India's most recent action clearly exemplifies the weaponization of water to which Pakistan has been consistently drawing attention of the international community. جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کو سنگین خطرات لاحق ہیں۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا انتباہ، کہا بھارت نے پیش کی اطلاع کے بغیر دریائے چناب میں پانی چھوڑا۔ بھارت کا حالیہ اقدام پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی واضح مثال ہے۔ معاہدے کے تحت ضروری ڈیٹا اور معلومات پاکستان کو فراہم نہیں کی گئیں۔ سنتاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی نہیں ہو سکتی۔ بھارتی اقدامات سے پاکستان کی غذائی سلامتی کو خطرہ لاحق ہے۔ بھارت کی جانب سے تنازعات کے حل سے فرار عالمی قوانین کی نفی ہے۔ کیا نام ہے، اس رپورٹ سے کلیئر لکھا ہے کہ کس طرح اپنی وہ اس مائنڈ سیٹ کا جو استعمال ہے وہ انڈیا میں کر رہے ہیں، وہ کشمیر میں کر رہے ہیں۔ اینڈ لیٹس ناٹ فرگیٹ کہ انڈیا کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ اس ریجن کا روگ ہے، وہ اس ریجن کا ایک مانسٹر ہے جو ہندوتوا مائنڈ سیٹ کے ساتھ چل رہا ہے۔ اب اس رپورٹ کے بعد جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ کس طرح یو این اس کے اوپر ریئیکٹ کرتی ہے اور یو این اس کے اوپر کیا ایکشن لیتی ہے۔ بھارت نے پاکستان پر بے بنیاد الزامات لگائے، آپریشن سندور میں بھارت کو منہ کی کھانا پڑی۔ بیرسٹر دانیال چودھری کی جی ٹی وی نیوز سے گفتگو، کہا بھارت کروڑوں لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہا ہے، بین الاقوامی برادری کو بھارت کے خلاف ایکشن لینا چاہیے۔ بھارت کشمیر میں مظالم جاری رکھے ہوئے ہے۔ بھارت سے جنگ جیتنے کے بعد پاکستان کو پذیرائی حاصل ہوئی۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں حق اور سچ کی فتح ہوئی، دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اڈیالہ روڈ بند ہونے سے لوگوں کی زندگی اجیرن ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے گزارش ہے اڈیالہ کے قیدی کو کہیں اور شفٹ کر دیں۔ بنگلہ دیش میں طلبہ رہنما عثمان ہادی کے قتل پر ڈھاکہ سمیت متعدد شہروں میں ہنگامے پھوٹ پڑے۔ ڈھاکہ میں مشتعل مظاہرین نے سڑکوں پر نکل کر عوامی لیگ اور میڈیا اداروں کے دفاتر کو آگ لگا دی۔ اہم سڑکیں بند، سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپیں، مظاہرین نے شیخ مجیب الرحمان کی رہائش گاہ کو بھی جلا ڈالا۔ ہادی پر حملے کے ذمہ داروں کو فوری طور پر انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ مظاہرین کا مطالبہ، تفتیشی حکام کے مطابق حملہ آور بھارت کی سرحد سے غیر قانونی طور پر داخل ہوئے اور فرار ہوئے۔
कोट लखपत जेल में कैद पीटीआई रहनुमाओं का अपने वकील के जरिए मीडिया को खत। एक बार फिर मुज़ाकरात की हिमायत कर दी। शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी और मियां महमूद रशीद ने खत लिखा। गुज़िश्ता 3 साल 8 माह से पाकिस्तान शदीद बहरानों का शिकार है। हर मुहिब वतन की जिम्मेदारी है कि वो मुल्क का सोचे और पुरअमन ज़राए से मकासिद हासिल करे। बानी पीटीआई ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन को जिम्मेदारी दी है कि वो कौमी जमातों की मुशावरत से हल निकालें। वसीतर मुशावरत दर हकीकत मुज़ाकरात का दरवाज़ा है। खत का मतन। हर किस्म के चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार, बंदूक के जोर पर कोई अपने नजरियात हम पर मुसल्लत नहीं कर सकता। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का तकरीब से खिताब। कहा, रियासत मजबूत चट्टान की तरह खड़ी है और खड़ी रहेगी। दहशत गर्दों को उनके मजबूम अज़ाइम में कामयाब नहीं होने देंगे। कोट लखपत जेल में 9 मई को क्लब चौक GOR के गेट पर हमले के मुकदमे का ट्रायल मुकम्मल। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत की जानिब से आज मुकदमे का फैसला सुनाए जाने का इम्कान। डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर तमाम 33 मुल्जिमान के हक में बयानात कलमबंद। प्रोसिक्यूशन के तमाम 56 गवाहों के बयानात पर जरह मुकम्मल हो चुकी। अदालत की मुल्जिमान के वकला को आज हतमी दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। ट्रायल में 4 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ऑटिज़म का संग बुनियाद रख दिया। तकरीब में नन्हे तालिब इल्मों की शानदार परफॉर्मेंसेस, खुसूसी सलाहियतों के हामिल बच्चों का फ़न का भरपूर मुजाहरा। शुरका दाद दिए बगैर ना रह सके। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत का फ़र्ज़ है खुसूसी बच्चों को मुआशरे में बाएतमाद और ख़ुद मुख्तार बनाएं। खुसूसी बच्चों की तरबियत हमारा इज्तिमाई फ़र्ज़ है। कराची में हैवी ट्रैफिक हादसात में बढ़ती अमवात, ई चालान और हुकूमती रवैये के खिलाफ जमात इस्लामी सरापा एहतजाज। कराची के कई अहम मुकामात पर आज धरने देने का ऐलान। शहर की बड़ी मरकजी शाहराहों और अहम पब्लिक मकामात पर शाम 5 बजे एहतजाजी धरने दिए जाएंगे। अमीर कराची मुनिम जफर शाहराए कायदीन पर धरने से खिताब करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से IG सिंध गुलाम नबी मेमन की मुलाकात। अमनो अमान और सिक्योरिटी इक़दामात पर गवर्नर को तफसीली ब्रीफिंग। कामरान टिसोरी ने कहा, अवाम को जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। स्ट्रीट क्राइम के खात्मे के लिए हुकूमत भरपूर इक़दामात कर रही है। अमनो अमान के लिए तमाम इदारों के दरमियान मौसर और मरबूत राब्ता नागुज़ीर है। कराची के लिए आबाद ने खतरे का अलार्म बजा दिया। साल 2025 में कराची की आमदनी 10% घट गई। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का इंकशाफ, सबसे ज्यादा नुकसान हाउसिंग सेक्टर को हुआ। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी कहते हैं, कराची पर तवज्जो न दी गई तो मुल्की मईशत के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात धरे के धरे रह जाएंगे। इसराइली सिक्योरिटी सिस्टम पर एक और बड़ा सवालिया निशान लग गया। ईरानी हैकर्स की बड़ी कार्रवाई। साबिक इसराइली वजीर आज़म का फ़ोन हैक कर लिया। साबिक इसराइली वजीर आज़म की हसास राब्ता फहरिस्तें ईरानी हैकर्स के हाथ लग गईं। इसराइली मीडिया ने वाक़े को इंटेलिजेंस फेलियर करार दे दिया। ईरान ने डिजिटल महाज पर इसराइली बरतरी चैलेंज कर दी। इसराइली सिक्योरिटी दावे खोखले, साइबर वॉर में ईरान मजबूत। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने बंदाई बीच हमले के बाद हथियार कानून सख्त कर दिए। विफाकी काबीना ने गन बाइक बैक स्कीम मंजूर कर ली। इजाफी और गैर जरूरी हथियार वापस खरीदे जाएंगे। किसी एक शख्स के पास ज्यादा हथियार रखने की इजाजत नहीं होगी। गन लाइसेंस के लिए ऑस्ट्रेलियाई शहरियत लाजमी करार दी गई। डोनाल्ड ट्रंप का वेनेजुएला से तेल और वसाइल वापस लेने का ऐलान। बाइडेन दौर में अमेरिका के मफादात छीन लिए गए। ट्रंप का दावा, अमेरिकी कंपनियों को वेनेजुएला से निकालने पर बरहम। दो टोक अंदाज में कहा, अमेरिका अपना सब कुछ वापस लेगा।
अमेरिकी रियासत नॉर्थ कैरोलिना में छोटा तैयारा गिरकर तबाह, 7 अफराद हलाक। हुकाम के मुताबिक तैयारा उड़ान भरने के कुछ देर बाद वापस हवाई अड्डे की जानिब आया और लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार हुआ। तैयारे में शदीद आग भड़क उठी। हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी। दुबई और अबूधाबी के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। वर्क फ्राम होम नाफिज, निजी सेक्टर को भी रिमोट वर्क पॉलिसी अपनाने की हिदायत। सिर्फ इंतहाई ज़रूरी अमला दफातर आएगा। दुबई का ग्लोबल विलेज और एन दुबई आर्जी तौर पर बंद। स्काई डाइव दुबई की तमाम सरगर्मियां मअतल। दुबई पुलिस की गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत। फ़्लाइट ऑपरेशन भी शदीद मुतासिर, कई परवाज़ें मनसूख। सऊदी अरब में बर्फबारी से सहराई इलाकों में सफेद चादर बिछ गई। खुमैस और हाइल में बर्फ गिरने के दिलकश मनासिर ने सबके दिल मोह लिए। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा। हुकाम के शहरियों को एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की हिदायत। कराची में ट्रैफिक हादसात का सिलसिला न थम सका। मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। बल्दिया रेस रोड कस्टम चौक पोस्ट पर जंपर और कार के दरमियान शदीद तसादुम। गुलशन इकबाल में नामालूम गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। लाशें सिविल अस्पताल और जिना अस्पताल मुंतकिल। कराची में SIU पुलिस अफसरान की जानिब से जब्त शुदा मनशियात फरोख्त करने का मामला। इंक्वायरी कमेटी ने अपनी तहकीकात मुकम्मल कर ली। रिपोर्ट एडिशनल IG कराची को इरसाल। मुअत्तल पुलिस अफसरान और अहलकार पर रकम की लेन देन का इल्ज़ाम साबित। पुलिस अफसर ने मुल्जिमान को रियायत देने के एवज़ भारी रकम वसूल की। जिला औरकजई में 3 साला बच्ची के अगवा और कत्ल केस में अहम पेशरफ। मरकजी मुलजिम समेत 3 मुलजिमान फायरिंग के तबादले में मारे गए। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान को तफ्तीश के लिए ले जाया जा रहा था। नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए। फैसलाबाद में कॉटन फैक्ट्री में आतिशज़दगी से जाँ बहक अफराद की तादाद 3 हो गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मलबे तले दबे तीसरे मजदूर की लाश भी निकाल ली गई। इब्तदाई इतलात के मुताबिक गुज़िश्ता रात फैक्ट्री में मौजूद पुराने कपड़ों को नामालूम वजह से आग लगी। 2.5 करोड़ रुपए मालियत का कपड़ा और मशीनरी जलकर राख हो गई। असातिज़ा की भर्तियों में उस्तादी। बलूचिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा भर्ती स्कैंडल। कोयटा की सबसे बड़ी सरदार बहादुर खान वुमेन यूनिवर्सिटी में मेरिट का कत्ल। असातिज़ा की भर्ती की लिस्ट में नाकाम उम्मीदवारों को टॉप पोजीशन दे दी गई। 8,690 टीचिंग पोस्टों की असामियों के लिए 2 लाख उम्मीदवारों ने इम्तिहानात दिए। GTV न्यूज़ ने 600 उम्मीदवारों की इम्तिहानी शीट हासिल कर ली। अंडर 19 एशिया कप का सेमीफाइनल। पाकिस्तान का बांग्लादेश के खिलाफ टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला। बारिश के बायस मैच 27 ओवर्स तक महदूद कर दिया गया। दोनों टीमों के दरमियान मैच 7 क्रिकेट स्टेडियम दुबई में खेला जा रहा है। PSL 11 के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का आगाज। आखिरी तारीख 20 जनवरी 2026 मुकर्रर। इवेंट 26 मार्च से 3 मई तक खेला जाएगा। 2 नई टीमों की नीलामी 8 जनवरी को इस्लामाबाद में होगी। 8 टीमों पर मुश्तमिल इवेंट होगा। फलस्तीन में क्रिसमस ट्री जगमगा उठा। मगरबी किनारे के मसीही इलाके बैत जाला में फलस्तीनी मसीहियों ने क्रिसमस की मुनासबत से तकरीब मुनक्किद की। क्रिसमस ट्री को बरकी कुमकुमों से सजाकर रोशन कर दिया गया। तकरीब में हज़ारों अफराद शरीक हुए।